Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram. Let me share with you that what is the greatest blessing upon human? The greatest blessing upon human. Vaheguru. In Guru Nanak Sahib's language, Dukh Daru. Daru means the greatest blessing. Dukh. We keep complaining about Dukh whole life. Kyun dukhi hai? It's called existential suffering. Existential. Existence means it cannot be denied. Cannot be denied. That's called existence. You know, we keep debating about what's an astik and what's a nastik. What's a believer and what's a non-believer. You know, believer doesn't mean believing in Sri Ram or Guru Granth Sahib or Allah. Believer means the one who believes in existence. Whatever is there. Can you deny that? It's there. So every one of us is a believer. Everyone is an astik. You don't have to be a Hindu or a Muslim to say, I am an astik. You have to. There is no escape. You have to believe in existence. There is a sky, so you're an astik. You are a believer. There are relationships. There is this old age. There is this death. You have to believe it, accept it, and you do believe it. But you keep fighting with it. That makes an astik a nastik. That makes you a non-believer. Whatever is there, you have to accept it. So dukh is existential suffering. Every human being has to experience it in some form or the other. जरूरी नहीं है कि कोई बीमारी आए, कोई बीमारी भयानक बीमारी आ जाए, कैंसर बोल देते, जरूरी नहीं है. I mean, दुख दारू सुख रोग पे आ. Happiness is a disease. Look at this. This is Guru Nanak Sahib saying it. So you forgive me for this. He's declaring it. Nanak dukhiya sab sansar. Sab dukhi hai, magar it's an etiquette that we have to look smiling. This is an etiquette. We must do that. It's a social etiquette. It's a necessity that we must wear a smile upon our face. Otherwise, we are not even dressed up. Then we are naked. Then we are washing our dirty linen in public. Koi bhi puchta hai, how are you? It's an etiquette. You should say, I'm fine. Not that you start weeping over his shoulder. Isn't it? अपनी घर की प्रॉब्लम्स बतानी शुरू कर दो. किसकी प्रॉब्लम्स नहीं है? घर में नहीं, अपनी शरीर में भी. You're not supposed to tell your problems to that who matters. I mean, कोई बीमारी आ गई तो डॉक्टर को बताओ. So, दुख तो ब्लेसिंग है, क्योंकि एग्जिस्टेंशियल है. और अगर आदमी कंफर्टेबल है इन लाइफ, तो ये तो रोग है. If you think you are fine, actually fine, inside yourself you feel I'm fine, it's a disease. Look at this. Guru Nanak Sahib is saying it. Don't you have to forgive me for this. And if Guru Nanak is saying it or Sri Krishna is saying it, it is a gospel. If Jesus is saying it, it's a gospel. You can't deny it, because whatever they talk is existential. It is reality.
सो दुख दारू सुख रोग पया, क्योंकि जा सुख ताम ना होई। ताम पंजाबी में ता को बोलते हैं, जा सुख ता ना होई। अगर आप सुखी हैं तो फिर आपकी बात नहीं बन सकती कभी भी। बुद्धा की बात क्यों बन गई? क्योंकि सब कुछ होते हुए भी, he was a prince, he had a family, he had everything which he could think of, but he experienced dukh. I have also been fortunate, kind of born with a silver spoon. My mother gave me all that I needed, and everything in life kept giving me whatever I needed as a human. But there was an unquenchable, there was an unbearable dukh inside. Why? I didn't know, but there was an emptiness, unbearable emptiness. So, dukh daru ban gaya, blessing ban gayi. He started seeking, कि क्या तरीका क्या है? Should I end this life? Somebody, when you're seeking from the heart, then the Guru appears. So Guru appeared and says, दुख तो बहुत, it's a blessing. हुआ तो कुछ भी नहीं है, तुम ऐसे ही दुखी हो, but this is existential dukh. Till you experience this dukh, there is no possibility of that sukh, which is otherworldly. आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। उस संसार में, उस चाहत देश में कोई मृत्यु नहीं है, कोई जन्म नहीं, उसमें कोई दुख नहीं। There is that world. That world is called Vivek. That's called Jnana. That's called Brahmalok, Sachkhand. That's called I. I. The capital I. ये जो capital I है, that's the greatest achievement a human being can think of. What Moses saw, what Jesus felt when he felt that I am a chosen one, because he experienced I. Moses saw God and he asked, who are you? And God says, I am. I am. उस आई को भूल जाना ही अज्ञान है, अविद्या है। अविद्या की डेफिनेशन, अज्ञान की डेफिनेशन, इग्नोरेंस की डेफिनेशन क्या है, डार्कनेस की डेफिनेशन क्या है, सफरिंग की डेफिनेशन क्या है? And I use so many words so that you find that they are all synonyms. They are all synonyms. Suffering, dukkha, avidya, ajnana, ignorance, darkness. They are all synonyms. So definition क्या है? अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु। जो चीज अनित्य है, हर वक्त बदलती रहती है, जो फ्लैश एंड बोन्स है, अनक्लीन है, अशुचि, जो हर वक्त बदलती रहती है, जो चीज क्लीन नहीं है, फ्लैश एंड बोन्स ही है। दुख ही दुख है, एग्जिस्टेंशियल सफरिंग, और अनात्म है, जो मैं नहीं हूं। अनात्म मतलब मैं नहीं। उसके ऊपर अब ये सब कौन है? ये आदमी फ्लैश एंड बोन्स का बना हुआ है,
हर वक्त बदलता रहता है, कभी बूढ़ा हो जाता है, कभी बीमार हो जाता है, कभी कोई तकलीफ आ जाती है, कभी इसकी सोच विचार बदल जाते हैं, कभी सोच विचार ऐसे हो जाते हैं, कुछ ना कुछ करता रहता है, हिलता जुलता रहता है, सांस आगे नीचे पीछे होते रहते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ व्याधि, ध्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, बहुत सारी इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं। अशुचि है, क्लीन नहीं है, क्योंकि फ्लैश एंड बोन्स है, इसको बार बार क्लीन करना पड़ता है साबुन पानी से, वेरियस विच वेज। दुख ही दुख है, क्योंकि इसने एक्सपीरियंस कर लिया कि दुख ही दुख हूं मैं, सब कुछ होते हुए भी मैं दुखी हूं। चीजों के साथ मैं सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि दुखी मेरी नेचर है, मैं दुखी हूं। और अनात्म, और मैं नहीं हूं, उसके ऊपर एक क्राउन डाल देना। किसका? नित्य, शुचि, सुख, आत्म ख्यातिर। ख्याति मतलब उसके ऊपर एक ऑनर, एक क्राउन डाल देना, डाल के बैठा देना कि जी मैं हूं, मैं ये आदमी हूं। ये अज्ञान है, ये अविद्या है। इसलिए गुरु नानक ने बोला होगा मेरी फोटो वोटो मत लगाना। गुरु गोविंद सिंह ने बोला होगा फोटो नहीं लगाना, अंडरस्टैंड करो कि तुम कौन। बट वेल, फोटो इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, क्योंकि यू हैव टू, एज अ बॉडी यू हैव टू रिलेट विद अ बॉडी, एंड यू गेट इंटरेस्टेड इन मी। वो इंटरेस्ट को भी लव बोल देते हैं। यू गेट इंटरेस्टेड इन मी, व्हाई डू यू लिसन टू मी? बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन मी, and you believe that whatever I'm telling you is for your good. This belief that whatever I'm telling you is for your good, not for my good. So this belief forms a relationship. इसको आप कोई भी नाम दे दो, ना ही दो तो बेटर है। हाथ से छू के इसे रिश्तों का नाम ना दो, isn't it? So इसके ऊपर एक क्राउन डाल देना कि मैं ये हूं। क्राउन क्या होता है? मैं सबसे बड़ा हैपनिंग है इन द क्रिएशन, कि मैं कौन हूं। मैं इस आदमी को अगर बोलना शुरू कर दूं कि मैं ये हूं, तो दूर फिटे मुंह। मैं ये आदमी नहीं हूं, मैं हूं, और वही मैं आप हैं। जब अपने आप को अपना एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा, तो उसको ज्ञान बोलते हैं, उसको विवेक चूड़ा मणि बोलते हैं, विवेक बोलते हैं उसको। विवेक मतलब पता चल जाना कि मैं कौन हूं। ये वाला मैं नहीं, आपका मैं। आपको पता चल जाना कि आप कौन है। बस जब आपको पता चल जाएगा आप कौन है, तो फिर कौन मरेगा, कौन जन्म लेगा? आप तो स्वयं भू हैं, आप तो एक ओंकार हैं। अजूनी है, सैपांग है, आपको कभी कोई बीमारी नहीं आ सकती, आप कभी बूढ़े नहीं होते। मगर वो डेवलप होगा विद इंटरेस्ट, विद लव। जब आपको मैं के साथ प्रेम हो जाएगा, इस मैं के थ्रू आपको मैं के साथ प्रेम हो जाएगा, तो आप अपने आप को धीरे धीरे पहचान लेंगे, और इस मैं को भूलना शुरू कर देंगे। जब तुझे खुद आप से बेगानगी हो जाएगी, जब आप इस मैं को मैं कहना बंद कर दोगे, जब तुझे खुद आप से बेगानगी हो जाएगी, आशना, तब तुझसे वो देर आशना हो जाएगा। फिर जिसको तुम जानना चाहते हो ना, आशना होता है जिसको, जो जानता हो, जिसको जानना चाहते हो,
फिर वो आप हो जाओगे। हरे राम। मगर ये जो गूढ़ बातें हैं, इसके लिए आपको प्रिपेयर कौन करेगा? इतना दिमाग क्यों लगाएंगे आप? मेरी बातें क्यों सुनेंगे? जब ये ब्लेसिंग होगी आपके ऊपर। कौन सी ब्लेसिंग? हमने शुरुआत कैसे की थी टुडेज टॉक? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग? दुख। दुख जब एक्सपीरियंस होगा तभी तो आप मेरी बातें मानेंगे, नहीं तो क्यों मानेंगे? सो दुख दारू सुख रोग पया, जा सुख ताना होई, पर तू करता करना मैं नाही, जा हूं करी ना होई। सो जो आई है, जो अल्टीमेट नीड है, जो सुख है, जो आत्म है, जो नित्य है, जो शुचि है, वो ही कृपा करेगा, कोई ना कोई फॉर्म लेके आपको याद करवाएगा। आप अपने आप याद नहीं कर सकते। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब में सबसे पहले मूल मंत्र में बता दिया कि एक ओंकार गुरु प्रसाद। बिना गुरु के आपके अंदर ये विचार ही नहीं आएगा कि मैं कौन हूं। गुरु आपको प्रेम से धीरे 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 जो आप नहीं हैं उसको मार देगा, और जो बच जाएगा वो आप होंगे। जो बच जाएगा वो विवेक होगा, वो ज्ञान होगा, वो प्रेम होगा। आप शरीर ना रह जाएंगे, आप मन ना रह जाएंगे, आप ये सोच विचार ना रह जाएंगे। धीरे धीरे केवल प्रेम ही रह जाएगा। प्रेम ही सत्य है, वही शिव है और वही सुंदर है। हरे राम हरे राम हरे राम। वेद पुराण स्मृति सुधाकर, कीने राम नाम एक आखर। सारी की सारी दुनिया के जो शास्त्र हैं वो कहाँ से निकले हैं? शास्त्र योनित्वात्। शास्त्र ब्रह्मा की योनि से निकले हैं। ब्रह्मा की योनि ही राम है, वही नाम है। उस नाम को जपते 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 आप नाम हो जाएंगे। और नाम क्या होता है? आपका नाम, आपका अपना नाम आपको याद आ जाएगा। जो नाम रखा हुआ है वो नाम आपका नहीं, आपका अपना नाम याद आ जाएगा कि आप कौन। आप आई हो, आत्म हो, वो नहीं जो बन बैठे हो। बन बैठे हो इज टेम्पोरल। असली में कौन हो वो याद आ जाएगा। बस उसी की तलाश है। जब तक वो याद नहीं आता तब तक नानक दुखिया सब संसार, तब तक दुखी ही रहना पड़ेगा। और दुख को मानना भी पड़ेगा कि हाँ मैं दुखी हूं, बिकॉज इट इज एक्सिस्टेंशियल सफरिंग। जब आप मान लोगे कि मैं दुखी हूं, हाँ, तब आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी। मतलब परिवार होते हुए, घर बार होते हुए, सब कुछ होते हुए, बीमारी भी अभी कोई नहीं आई, फिर भी मैं दुखी हूं। जब ये समझ आ जाएगी तो फिर सुख की तलाश शुरू हो जाएगी। फिर आप गुरु की बातें डीपली अपने अंदर ले जाओगे और ढूंढोगे कि मैं कौन हूं। जब आपको पता चल गया कि मैं कौन हूं, तो फिर श्री कृष्ण भी वही है, बुद्ध भी वही है, नानक भी वही है, अल्लाह भी वही है।
फिर आपके लिए कोई और भगवान ना रह जाएगा, क्योंकि एक ही तो भगवान है, उसको आई बोलते। एक ही भगवान, एक ओमकार, ओम। चाहे ओम के सामने नमो शिवाय लगा दो, चाहे ओम के सामने कुछ भी लगा दो, ओम के आगे साईं राम लगा दो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय लगा दो, ओम ही भगवान है। वो आप है, वो आई है, आत्मा। हरे राम। वहां कोई दुख नहीं टच कर सकता किसी को। वो ही असली क्राउन है। इसीलिए उसको विवेक चूड़ा मणि बोलते। एक बड़ी प्रोफाउंड किताब है आदि शंकराचार्य की, उसका नाम है विवेक चूड़ा मणि। ये अपरोक्ष अनुभूति होगी आपको, ढूंढते 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 आप न रह जाएंगे। प्रेम करते 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 आप प्रेम हो जाएंगे। हरे राम, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और मुझे इस आदमी को पिक्यूलियरली आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। आपका भला चाहिए, आपकी बात बन जाए, बस इतना ही चाहिए। आपको सचमुच का आनंद के दर्शन हो जाए, बस इतना ही चाहिए। कि मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं, ये आदमी नहीं हूं। आप भी जान जाएंगे कि आप कौन हैं। उसके बाद कोई सफरिंग नहीं। उसके बाद आप बोलेंगे आनंद प्या मेरी माए सतगुरु में पाया। हरे कृष्णा, वाहेगुरु। हरे राम। धीरे धीरे होगा, श्रद्धा और सबूरी के साथ होगा। हरे कृष्णा। 5 बाणियां करो, 5 नमाज करो, 3 संध्या वंदन करो, सारा दिन ढूंढते रहो अपने अंदर का आनंद, अपने अंदर का आई, आत्मा को ढूंढो। काम करते करते बीच बीच में ब्रेक लिया करो। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। 3 बाणियां करते हैं सुबह सुबह सिख लोर में, ताकि टाइम दीजिए सुबह सुबह। अमृत वेला पकड़ो, सच नाओ वड्याई विचार। तो तीनों बाणियां करो, जाप साप करो, जप जी साप करो, सवैये पढ़ो। फिर मिड डे 12 बजे फिर कुछ करो, रह रास साफ करो, रह रास, ताकि रास रस प्रिजर्व्ड रहे, प्रेम में ही जियो। हरे राम। फिर रात को कीर्तन सोहेला एंड गो टू स्लीप। हरे राम, वाहेगुरु, हरे कृष्णा।